आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में राष्ट्रपति का रांची दौरा, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, सेना अलंकरण समारोह और फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रांची पहुंची। राजभवन में रात्रि विश्राम के बाद राष्ट्रपति आज बीआईटी मेसरा के प्लैटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुईं। बीआईटी मेसरा की स्थापना के 70 वर्ष की यात्रा पर पेश है एक रिपोर्ट। Nestled in the heart of Jharkhand lies a sprawling campus, a beacon of academic brilliance, brimming with the collective energy of India's best and brightest. Nestled in the heart of Jharkhand lies a sprawling campus, a beacon of academic brilliance, brimming with the collective energy of India's best and brightest. What started with 83 students, 8 passionate educators, and 3 departments has grown into a vibrant hub of over 10,000 bright minds and 600 faculty members, pushing boundaries across more than 20 disciplines. Every corridor here carries stories of ambition, perseverance, and the relentless pursuit of knowledge. This is the Birla Institute of Technology, Mesra. He believed that among setting up the building blocks of industrialization, a high-quality education in engineering and science was key to India's progress. The university was one of the main pillars of his ambition of creating a self-reliant India. Since our inception, we have had a clear purpose to advance technical education in India. Over 70 years, we have produced generations of global innovators and leaders. 70 years of excellence. 70 years of imagination, 70 years of innovation. From a bold vision to a thriving legacy, the journey continues. This is BIT Mesra. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्लैटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए बीआईटी प्रबंधन और इससे जुड़े शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई दी। I am very glad to be here among you. It is a historic milestone at the Birla Institute of Technology, Mesra, which has contributed immensely to the developmental saga of our nation, completed 70 years. My heartiest congratulations to you and to everyone associated with this pioneer institute on its Platinum Jubilee. The faculty and administrators, past and present, as well as students and alumni must be commended for the quality and excellence that BIT stands for. Your institute has imparted engineering education in this mineral-rich region, which is also a prominent manufacturing hub. I have served Jharkhand as governor and this university as chancellor, and I am also proud of its rich legacy. BIT has been an integral part of the state's history. The Platinum Jubilee is an apt occasion to celebrate and honor the Institute's contributions to education, research and innovation in engineering, technology and allied fields. BIT has been a pioneer in a number of fields. The first department of space engineering and rocketry in the country. It is also the only technological university in Eastern India. I am confident that BIT Mesra will continue to make rich contributions to the continuing evolution of science and technology in India. राज्यपाल संतोष गंगवार ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बीआईटी मेसरा ने विद्यार्थियों की सोच को विकसित किया और आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शिक्षा दी। बीआईटी मेसरा इस देश में कई इंजीनियरिंग विषयों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की समृद्ध विरासत के साथ एक प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए आयामों के उदय के साथ ये अपने कुशल युवा इंजीनियरों और प्रबंधकों के लिए नई संभावनाएं भी प्रस्तुत कर रहा है। 1955 में बीआईटी मेसरा की स्थापना इस संस्थान के दूरदर्शी संस्थापक
श्री BM बिरला जी की एक बहुत ही प्रशंसनीय पहल थी, जिन्होंने इस देश के विकास के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के महत्व को सही ढंग से समझा। तब से BIT ने एक लंबा सफर तय किया है और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को तैयार किया है, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी योग्यता से संस्थान और देश का नाम रोशन किया है। ये संस्थान निरंतर नए नवाचारों और अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जो इसे विश्व स्तर पर विशिष्ट बनाता है। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि BIT मेसरा ने विद्यार्थियों की सोच को विकसित किया और उन्हें एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार किया है जो कि उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने तथा उनके समाधान ढूंढने की शक्ति प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में झारखंड समेत पूरे देश के विद्यार्थियों से संवाद किया। श्री मोदी ने बच्चों को परीक्षा की तैयारियों और तनाव मुक्त परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। आखिर वो दिन आ ही गया कि जब हम PM से सामना सामनी मिल सकते हैं। Today I'm here to interact with The Prime Minister of India, PM Modi ji. When he arrived, everyone was surrounded with positivity. He was like very charming थे वो बहुत ज़्यादा। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। हाँ, तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है। जिसको ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा खा सकते हैं। PM सर जब हम लोग को आके तिल का नारू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बोलते हैं? तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। हाँ, वाह। अगर कोई गेस्ट घर आते हैं तो हम देते हैं ना, वैसे उन्होंने दिया हमें। केरला में क्या बोलते हैं इसको? तिल के लड्डू कहते हैं। तिल के लड्डू बोलते हैं। वहाँ पे ये बहुत कम मिलता है। कम मिलता है? हाँ। अच्छा। ऐसा लगा कि अच्छा हमारे लिए भी कोई थिंक करता है। और किसी को लेने का मन करता है? सर बहुत। हाँ, ये बड़ा बहुत अच्छा अच्छे लगे सर। हाँ। आप लोग पोषण के संबंध में क्या जानते हैं? जो अपने बॉडी के लिए सर जो भी मिनरल्स चाहिए सब उसकी बस रिक्वायरमेंट को अपन को नहीं, लेकिन अगर उसका ज्ञान ही नहीं तो क्या करेंगे? एक्चुअली इंडिया में मिलेट्स को प्रमोट करते हैं क्योंकि मिलेट्स इज फिल्ड विद न्यूट्रिशन। बाजरा, रागी, ज्वार सब खाते हैं। अच्छा, मिलेट को दुनिया में क्या स्थान मिला पता है? India is the highest producing and also consuming country. लेकिन 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने 23 को ईयर ऑफ द मिलेट कह के घोषित किया था और पूरी दुनिया में मिलेट को प्रमोट किया और ये भारत का प्रस्ताव था। भारत सरकार का बड़ा आग्रह है कि पोषण के संबंध में बहुत ही जागरूकता होनी चाहिए। कई बीमारियों को रोकने का काम पोषण से हो जाता है। और मिलेट को क्या कहते हैं हमारे यहाँ? सुपर फूड कहते हैं। मान लीजिए घर में एक कुत्ता पाला है जो अपने कुत्ते को इतना प्यार करता है, वो बचपन से बड़ा हुआ है और 10वीं कक्षा में आए और माँ बाप कह दें नहीं अब कुत्ते में समय मत लगाओ, वो हम तो कुत्ते को संभालेंगे, तुम पढ़ाई करो, तो आपका मन करेगा नहीं, मन बेचैन हो जाएगा। तो आपकी बात सही है और ये समझाना चाहिए कि रोबोट की तरह जी नहीं सकते, हम इंसान हैं। आखिरकार हम पढ़ाई क्यों करते हैं? आगे के क्लास में जाने के लिए। हाँ सर। हम हर स्तर पर अपने सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई करते हैं। जब आप शिशु मंदिर में थे उस समय आपको बताया गया, तो उस समय लगा होगा कि ये क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे माली तो बनना नहीं है, मुझे फूल की क्यों बात बताते हैं। और इसलिए मैं हमेशा परीक्षा पर चर्चा करने वालों से उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। रांची सैन्य स्टेशन में पिछले दिनों पूर्वी कमान अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना के अधिकारियों और सैनिकों को वीरतापूर्ण कार्यों के लिए विशिष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने विभिन्न उपलब्धियों के लिए 42 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। हवलदार क्यू प्योरजी भूटिया 11वीं गोरखा राइफल्स,
जून 2023 में आप सामरिक उच्च मूल्यों वाले लक्ष्य के लिए गुप्त निगरानी मिशन चलाए जाने वाले दस्ते का हिस्सा थे। क्योंकि इलाके के विषय में आपका अनुभव एवं जानकारी अत्यंत सराहनीय था, इसीलिए आपको ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के लिए चुना गया था। मिशन के दौरान आपके द्वारा खतरनाक ढलानों एवं अत्यंत चुनौतीपूर्ण इलाके से बड़ी सावधानी से पेट्रोलिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी टीम को अपने मिशन को पूरा करने के लिए उच्च स्तर की सफलता हासिल हुई। उत्कृष्ट प्रदर्शन, कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा, अतुलनीय साहस एवं अद्वितीय रणनीति का परिचय देने हेतु आपको सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। हवलदार फूक दोरजी भूटिया। 21st बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस 8 सितंबर 2023 को नायक शशि ठाकुर देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक संवेदनशील स्थान पर तैनात थे। इस दौरान नायक शशि ठाकुर को अपनी टीम कमांडर से उग्रवादियों द्वारा एक गांव पर हमले की सूचना प्राप्त हुई। नायक शशि ठाकुर ने चुनौतीपूर्ण मौसम, दुश्मन के खतरे और घने जंगल में उल्लेखनीय फील्ड क्राफ्ट का प्रदर्शन करते हुए उग्रवादियों के ठिकाने के करीब पहुंचे। एक कुशल स्नाइपर की तरह नायक शशि ठाकुर ने 2 उग्रवादियों को सटीक निशाने से मार गिराया। अनुकरणीय स्नाइपर स्किल्स, वीरता और सैन्य दक्षता का प्रभावी प्रदर्शन करने के लिए नायक शशि ठाकुर को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। नायक शशि ठाकुर। देवी और सज्जनों, आज के अलंकरण समारोह में दिए जाने वाले सम्मानों की अगली श्रेणी है सेना मेडल वीरता। लेफ्टिनेंट कर्नल रमन त्यागी, द कोर ऑफ इंजीनियर्स, 26 सेक्टर, असम राइफल्स। 8 सितंबर 2023 को लेफ्टिनेंट कर्नल रमन त्यागी पूर्वोत्तर के एक संवेदनशील इलाके में तैनात थे। इस दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल रमन त्यागी ने स्वेच्छा से एक चेकपोस्ट का नेतृत्व संभाला, जब असम राइफल्स की अन्य टुकड़ियां दूसरे ऑपरेशंस में व्यस्त थीं। 10,000 सशस्त्र दंगाइयों की उग्र भीड़ के बावजूद, अटूट संयम रखते हुए, गोली लगने के बावजूद लेफ्टिनेंट कर्नल रमन त्यागी ने अपने जवानों को प्रेरित करते हुए दंगाइयों के हमले को विफल कर दिया। कर्तव्य की पुकार से परे ऐसी सैन्य निष्ठा एवं पराक्रम के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल रमन त्यागी को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल रमन त्यागी। झारखंड के 14 जिलों में 10 फरवरी से 25 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष में एक बार फाइलेरिया रोधी दवा के सेवन से इससे बचा जा सकता है। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के अंतर्गत वर्ष में एक बार मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA कार्यक्रम चलाया जाता है। यह दवा पूरी तरह सुरक्षित है। इस वर्ष राज्य के 14 जिलों रांची, गढ़वा, बोकारो, सिमडेगा, धनबाद, साहेबगंज, रामगढ़, कोडरमा, गुमला, लोहरदगा, गिरिडीह, देवघर, पाकुड़ और पूर्वी सिंहभूम में 10 से 25 फरवरी तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है। खाली पेट दवा नहीं खाना है, किसी भी परिस्थिति में दवा का वितरण नहीं करना है। वर्ष में एक बार इस दवा के सेवन से फाइलेरिया जैसी लाइलाज बीमारी से आसानी से बचा जा सकता है। आप सबों से अनुरोध है कि आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जाने पर उनको सहयोग करें और यह दवा अवश्य खाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक, शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकिट्टा।